جی فرسٹ چیپٹر جو آپ کے اکنامکس BS4 میں ہے وہ ہے کلئی معاشیات کے خدوخال فریم ورک فار دا میکرو اکنامکس. کلئی معاشیات کے خدوخال کیا ہوتے ہیں کہ میکرو اکنامکس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, میکرو اکنامکس کس طرح سے ڈیوائڈ کی جا سکتی ہے اور میکرو اکنامکس کس طرح سے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے تھرڈ ایئر, سیکنڈ ایئر, فرسٹ ایئر میں کافی کچھ اکنامکس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ملتی جلتی ہی ہوں گی, بہت ساری چیزیں نئی نہیں ہوں گی, کچھ چیزیں ضرور نہیں ہوں گی, ان کے اوپر ہم لوگ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ضرور کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ ود دی چیپٹر. علم معاشیات کے بارے میں آج تک کئی ماہرین نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. یو آل نو کہ بہت سارے اکانومسٹ جو تھے اپنی اپنی کنٹریبیوشن کرتے رہے اکنامکس میں, بہت ساروں نے اپنی رائے دی. ہم نے فرسٹ ایئر سے پڑھنا شروع کیا کہ جب بھی ایک تھیوری آتی ہے اس کے اوپر بہت سارے کریٹیسزم آتے ہیں, اور وہ کریٹیسزم کون کرتے ہیں؟ ماہرین کرتے ہیں. تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا, اور معاشیات میں موجودہ صورت اختیار کرنے کے لیے جو مناظر طے کی ان میں کلاسیکی مکتب فکر کے بانی کون ہے؟ ایڈم اسمتھ. ہم سب کو پتا ہے, بار بار یہ دہرایا گیا ہے کلاس میں کہ ایڈم اسمتھ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بانی معاشیات یا اکنامکس کے فادر آف اکنامکس بھی کہا جاتا ہے, کہ انہوں نے سب سے پہلے اکنامکس کا کانسیپٹ دیا. یہی وہ تھے جنہوں نے کہا کہ اکنامکس جیسی بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. یہ تھوڑا سا کافی جو ہے ڈسٹورٹڈ کا ایریا ہے, لیکن اس کا جو چنک ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ ایڈم اسمتھ کی طرح سے, جیسے مالتھس کی تھیوری آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھی ہوگی, ریکارڈو جو تھے اکانومسٹ تھے, ایک ڈفرینٹ اکانومسٹ کے نام لے کر اس میں بتایا گیا کہ JB کلارک جیسے معاشیت دان تھے جنہوں نے مادی خوشحالی کا علم قرار دیا اکنامکس کو. ڈفرینٹ لوگوں نے اپنی اپنی تھیریز دی, تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ معاشی خوشحالی کا علم اکنامکس کو قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے, یہاں تک اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ کوشچن کر لیں پلیز, انمیوٹ کر کے اپنا مائک. کلیئر ہے سب کو؟ اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوشچن نہیں آئے تو پھر میں آگے چلتی جاؤں گی. ٹھیک ہے, اسی لیے ویلفیئر اکنامکس یا فلاحی معاشیات بھی اکنامکس کو کہا جاتا ہے. ویلفیئر اکنامکس کیا ہے؟ کہ جو فلاح و بہبود کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے اسٹڈی کرتی ہے یا ایسی تھیریز پریزنٹ کرتی ہے جس میں کیا ہو؟ لوگوں کی بھلائی ہو. جدید ماہرین میں کون کون شامل ہے؟ پروفیسر رابنس, لارڈ کین, اور ان کی اسٹڈیز کو کیا خصوصی توجہ حاصل ہوئی, اور ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماڈرن اکانومسٹ بھی کہا جاتا ہے. لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر رابنس نے معاشیات کو محض علم الحقیقت کا درجہ دیتے ہوئے ایک غیر جانبدارانہ علم قرار دیا. پروفیسر رابنس کہاں سے تھے؟ لندن اسکول آف اکنامکس کے گریجویٹ تھے, اور انہوں نے کیا کہا کہ ایک غیر جانبدارانہ علم ہے اکنامکس. یہ کسی بھی قسم کی یعنی کہ پریجڈس یا نیپوٹزم اپروچ نہیں رکھتا. یہ غیر جانبدارانہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کے کسی ایک چیز کی سائڈ نہ لیتے ہوئے نیوٹرل ہو کے اپنی بات کو واضح کرنا, اپنی بات کو رکھنا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اکنامکس ایک ایسا علم ہے جو کہ غیر جانبدارانہ طریقے سے اپنی تھیریز کو پریزنٹ کرتا ہے. جبکہ JM کینز نے کہا کہ معاشیات کی تعریف اس طرح سے بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو کامیاب ذرائع کو بروئے کار لا کر روزگار کے مواقع کو فراہم کرتا ہے اور قومی پیداوار میں اضافہ کی راہ کو دکھاتا ہے. یعنی فرسٹ ایئر میں بھی جب آپ لوگوں نے اکنامکس کے بارے میں پڑھا ہوگا تو اکنامکس کی بیسک ڈیفینیشن میں ٹیچر نے آپ کو یہی بتایا ہوگا کہ معاشیات کس چیز کا علم ہے. یہ ایک اسٹڈی ہے جو کہ کیا ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے کہ کس طرح سے ہمارے کامیاب ذرائع کو ہم بروئے کار لائیں اور روزگار کے مواقع کو بڑھا سکیں اور قومی پیداوار میں روزگار کو بڑھاتے ہوئے اضافہ کر سکیں. سو ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے ذرائع کیا ہیں؟ کامیاب ہیں, لمیٹڈ ہیں, جبکہ ہمارے روزگار کے مواقع بھی لمیٹڈ ہیں. لیکن ہم نے کیا اس میں اسٹڈی کرنا ہے کہ کامیاب ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے روزگار کو بڑھایا جائے اور قومی پیداوار میں بھی اضافہ کر دیا جائے. یہاں تک اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا تو پلیز کویشچن کریں تاکہ پھر ہم لوگ آگے جا سکیں. ویسے یہ آپ لوگوں کو جنرلی تو سمجھ آ جانا چاہیے کیونکہ یہ فرسٹ ایئر کی ہی ڈیفینیشن ہے, اور آپ لوگوں کو جو ڈفرینٹ اکانومسٹ کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی
कोई नए नाम नहीं है, फर्स्ट ईयर से ही आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, थर्ड ईयर में भी हमने बहुत दफा इनके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, अगरचा इल्म माशियात की बहुत सारी शाखें हैं, अभी तक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और आप फोर्थ ईयर में बहुत सारी जिक्र में आई होंगी शाखें, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक सोशल साइंस भी है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि समटाइम ये साइकोलॉजी को भी स्टडी करता है, समटाइम ये इसमें पॉलिटिकल व्यूज भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको बहुत ही ब्रेक डाउन करें, बहुत ही सिंप्लीफाइड या बहुत ही सादा अल्फाज में इसको अगर हमने पेश करना है तो इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है? दो तरह से, जिसमें पहली क्या है माइक्रो जुज़वी माशियात और दूसरी क्या है कुल्लई माशियात। हम जेरे नजर किताब में हमारा ज्यादातर ताल्लुक किससे हुआ था? पॉजिटिव ताल्लुक असबाती माशियात, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और माशी तज्जिया इकोनॉमिक एनालिसिस से, जिसको हमने मेजरली किन दो हिस्सों में तकसीम करना है? जुज़वी माशियात और कुल्लई माशियात। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यहाँ ताल्लुक असबाती यानी मुस्बत, ठीक है, असबाती माशियात वो क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नाम से ही जाहिर है कि पॉजिटिव चीजों को डिस्कस करती है। पॉजिटिविटी का मतलब है कि ये अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी ऑप्ट करती है तो ये हो सकता है। ठीक, जुज़वी माशियात विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश। माइक्रो या जुज़वी क्लियरली डिक्लेयर कर रहा है कि एक जुज हमारी बॉडी में बहुत सारे जुज होते हैं ना, और सारे जुज मिलकर क्या बनाते हैं? पूरी बॉडी को कॉम्पोजिट करते हैं या पूरी जिस्म को तश्कील देते हैं। इसी तरह से जुज़वी माशियात का मतलब है छोटे लेवल पर जाकर इकोनॉमिक्स को स्टडी करना। जुज़वी माशियात की इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब क्लासिकी मकतबे फ़िक्र के बानी एडम स्मिथ ने माशियात को एक बाकायदा इल्म की हैसियत से मुतारफ कराया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि एडम स्मिथ को बानिए इकोनॉमिक्स या बानिए माशियात भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये कॉन्सेप्ट दिया था कि मैक्रो के अलावा बाकायदा तौर पर जुज़वी माशियात को भी हम लोग मुआयना कर सकते हैं, उसका मुदारबा कर सकते हैं। माशी तज्जिया के मैदान में डॉक्टर केन्स की आमद से पहले इस बात पर बहुत चर्चा हो रहा था। लोगों ने मतलब जब एक कॉन्सेप्ट आता है नया तो सब लोग उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ कि डॉक्टर केन्स जो थे, आपको पता है एडम स्मिथ एक क्लासिकी मकतबे फिक्र थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जबकि केन्स क्या थे? केन्स की अपनी थेरी थी। इन्होंने गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को कहा कि मार्केट सेल्फ क्लियरिंग नहीं है, हमें कोई ना कोई ऐसी आउटसोर्स या ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए हैं जो कि मार्केट को क्लियर कर सकें। जबकि एडम स्मिथ ने कहा कि जो हमारी मार्केट है वो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्ड करती है किसी भी चीज को या किसी भी किस्म के चेंज को। लेट्स सपोज उन्होंने कहा कि प्राइस अगर तब्दील होती है तो वो ऑटोमेटिकली एक टाइम आएगा कि वो अपनी असल शक्ल बरकरार कर लेगी। एक मतलब मार्केट उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक इलास्टिक की तरह थे, हाईली इलास्टिक थी कि इलास्टिक को जितना भी आप खींचोगे वो अल्टीमेटली क्या होगा? छोड़ने पर अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो इन्होंने केन्स ने क्या किया? बहुत चर्चा किया। माइक्रो, जबकि मैंने अभी आपको बताया है कि लघवी मायने क्या है? 10 लाखवां हिस्सा, यानी कि बहुत छोटे से छोटा हिस्सा। तो इस बात से ही आपको अंडरस्टैंड कर लें कि जुज़वी का मतलब है बहुत छोटे पैमाने पर इकोनॉमिक्स को स्टडी करना। इसको छोटे मायनों में भी लिया जाता है, इसमें माशियत के मुख्तलिफ शोबों को अलग अलग जायजा लिया जाता है। कल भी मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि मुख्तलिफ शोबों, मुख्तलिफ कंपनीज का फॉर एग्जाम्पल हम अगर मुआयना कर रहे हैं तो वो कौन सी स्टडी होगी? माइक्रो या जुज़वी माशियात, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? छोटी छोटी इकाइयों और अज्जा को जेरे बहस लाते हैं। जैसे कि उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी मिसाल यहाँ पर दी है कि किसी सारफ के रवैये के जायजे को, शय की तलब और रसद के मताले को या उसकी कीमत के तयन, फर्म के मसाइल और उसके तवाज़न की मुख्तलिफ सूरतें और आमलीन पैदाइश के मुआवजों के तयन को क्या कहते हैं? जुज़वी माशियात या माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम क्या, हाँ, या हम एक कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। आपने आईसी कर्व देखे थे ना? आईसी कर्व क्या है कि वो अपने
हम उसमें मुसारफ का रवैये का जायजा करते हैं कि वो किस तरह से अपने बंडल ऑफ गुड्स को या बंडल बास्केट को डिसाइड करता है, शय की तलब किस तरह से करता है, उसकी सप्लाई किस तरह से डिटरमिन होती है, चीजों की कीमतें किस तरह से तयन होती है। चीजों की कीमत से मुराद ये है कि किसी एक चीज की कीमत, जैसे कि वो आटे की हो सकती है, चावलों की हो सकती है, दालों की हो सकती है, वो किसी भी किस्म की एक चीज की मताले को क्या कहेंगे हम, जुज़वी माशियात। आगे चलते हैं। जुज़वी माशियात के मताले का अहम पहलू क्या है कि ये छोटी छोटी इकाइयों को माशी तज्जिया करते वक्त यानी गौर जेरे बहस लाते हैं या बगौर उसका जायजा करते हैं। ये देखें, एक ही चीज उन्होंने 4-5 दफा आपको क्लियर करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाजों में इस्तेमाल की है। तो मेरे ख्याल में अभी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि जुज़वी माशियात क्या होती है। वैसे तो माशाल्लाह अब सब बहुत इंटेलिजेंट हैं और पहले भी ये चीजें पढ़ चुके हैं, पर डिटेल्स में आज हम लोग इसका मायना कर रहे हैं। क्या कहते थे माहिरीन? क्लासिकी माहिरीन क्या फर्ज करते थे कि माशियात मुकम्मल रोजगार की सतह पर ही काम कर रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एडम स्मिथ जो थे वो क्लासिकल माशियत दान थे और उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, कोई बेरोजगार नहीं है इकोनॉमी में, और अगर कोई बेरोजगार होता भी है तो हफ्ते डेढ़ या कुछ समय टाइम के बाद वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ जाएगा, उसको भी कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा। जबकि केन्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे। उन्होंने कहा था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी में तो एग्जिस्ट करेगी अनटिल और अनलेस जॉब्स क्रिएट की जाए या लोगों का प्रोफेशनल जो है उसका प्रोफाइल जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, लोग अच्छा पढ़े, अपनी तालीम को इम्प्रूव करें, तभी वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अचीव कर सकते हैं इकोनॉमी को। अदरवाइज वो उसी सूरत हाल में रहेगी जिस तरह के वो बन चुकी है। ठीक है, लिहाजा मसला सिर्फ जराए की तस्कीस का ही होता है। इन्होंने क्लासिकल ने क्या कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, मुकम्मल रोजगार है, तो मसला अब सिर्फ हमारे पास क्या है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एलोकेशन का मतलब है कि किस तरह से हमने अपने रिसोर्सेज को लोगों के दरमियान बांटना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो रोजगार का कोई मसला नहीं है, प्राइस का कोई मसला नहीं है, जो हुकूमत ने फैसला करना है वो किस पर, रिसोर्स एलोकेशन पर, कि किस तरह से कितने लोगों में कितनी चीजें डिवाइड होंगी, जो कि कीमतों की मकानियत से ही हल होता है। लिहाजा कीमतों के महवर को महवर हैसियत हासिल होती है। तो आपने अब एक बात याद रखनी है कि क्लासिकल्स ने क्या कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इकोनॉमी ऑपरेट करेगी, सिर्फ मसला क्या होगा कि हमने रिसोर्सेज किस तरह से लोगों में डिवाइड करने हैं। इस मसले को हल करने के लिए जो उन्होंने एक तरीके का तजवीज किया वो क्या था, प्राइस मैकेनिज्म, कि कीमतों की मकानियत अगर हम सीख लें तो हम लोगों को ये मसले पर हम लोग काबू पा सकते हैं कि रिसोर्स की एलोकेशन किस तरह से की जा सकती है। जुज़वी माशियात में दर्ज झेल मसाइल को हम क्या करते हैं, जेरे बहस लाते हैं। अब हम लोगों ने पहले पढ़ा कि उनका नजरिया क्या था, उसका मेजर मसला क्या था और उसकी प्राइस मैकेनिज्म के जरिए हल होता है। लेकिन इसके अलावा जो छोटे छोटे माइनर मसले हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने 4 पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं। पहले क्या है, नजरिया कीमत या प्राइस थ्योरी, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि अगर आप प्राइस मैकेनिज्म को डिवाइस कर ले तो कौन सा मसला हल हो सकता है, एलोकेशन का। तो जाहिर सी बात है पहले वो क्या करेंगे, प्राइस थ्योरी को स्टडी करेंगे। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा आपको इंडिकेट करने के लिए 2-3 लाइनों में डिस्क्राइब किया है कि प्राइस थ्योरी जब हम जुज़वी माशियात को स्टडी करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइस थ्योरी। 3rd ईयर में भी आपने किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, किसी एक शय की तलब। देखिए प्लीज, इसको उन्होंने क्या कहा है, एक सेकंड, किसी एक शय की तलब, किसी एक शय की तलब। एक शय से मुराद क्या है कि किसी एक चीज की तलब, लेकिन मैक्रो में ऐसा नहीं होगा।